રેડિયો મિર્ચી 98.3 FM. હાય મોહિની. હે અદિતિ, શું ચાલે છે? બસ જો આજે ઇશ્ક દોપહેરી પર વાત એ જ કરી કે વરસાદ એટલો બધો પડી રહ્યો છે, પણ એમાં કઈ રીતે સેફ રહેવું એ તો આપણા હાથમાં જ છે. સાચી વાત છે. અને આજે વરસાદમાં કઈ રીતે સેફ રહેવું તેનું પ્રેક્ટિકલ એક્સરસાઇઝ હું બપોરે કરીને આવી. હું જ્યારે ઘરેથી નીકળી ત્યારે જ વચ્ચે બપોરે જોરદાર વરસાદ આવ્યો ને. યસ, દેટ વોઝ ધ ટાઈમ આઈ વોઝ ઓન ધ રોડ્સ. ઓ માય ગોડ. અને ફાઇનલી આઈ મેનેજ ટુ રીચ ધ સ્ટુડિયો, કારણ કે એક બહુ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ આજે મને મળવા આવ્યા સ્ટુડિયોમાં. જયદીપ વર્મા, તેમનું નામ મિસ્ટર જયદીપ વર્મા. હી ઇઝ અ ડિરેક્ટર અને તેમની ડોક્યુમેન્ટરી આજે વડોદરામાં સ્ક્રીન કોગ્નિટો નામની એક એજન્સી છે, દે આર ડુઇંગ ઇટ. આ એક એવી ડોક્યુમેન્ટરી છે જે સુધીર મિશ્રા પર બની છે, ધ ફિલ્મ મેકર સુધીર મિશ્રા. અને બીજી ઇન્ડિયન રિયાલિટી ઓફ સિનેમા એ પણ દેખાડે છે. તો જ્યારે મેં તેમને અમુક બહુ પોઈન્ટેડ સવાલ પૂછ્યા કે ઇન્ટેલિજન્ટ ફિલ્મ, એન્ટરટેનિંગ ફિલ્મ વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે, અને એ બધા જવાબ તો મને મળ્યા. સાથે સાથે એક સરસ બીજી વસ્તુ તેમણે જણાવી કે બરોડા અને ગુજરાત આ એક એવી જગ્યા છે જે ફિલ્મ મેકર હબ બની શકે છે. અરે વાહ. જ્યાંથી મેક્સિમમ ફિલ્મ મેકર્સ બહાર નીકળી શકે છે. શું કામ? એ વાત પણ તેમણે આખા ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવી છે, જે આજે કેટલી કલ્ચર પર હું પ્લે કરવાની છું. જે કેટલી કલ્ચર પર વાતોનો વરસાદ થવાનો છે. કોની સાથે વાતોનો વરસાદ થવાનો છે? મિસ્ટર જયદીપ વર્મા એક ડિરેક્ટર છે તેઓ, અને તેમણે એક સરસ મજાની અવોર્ડ વિનિંગ, ઇન્ટરનેશનલ અવોર્ડ વિનિંગ ડોક્યુમેન્ટરી બનાવી છે. સુધીર મિશ્રા પર આ ડોક્યુમેન્ટરી બેઝડ છે. તેમના કામ વિશે છે, તેમના વિશે તો છે જ, પણ સાથે સાથે તેમના કામ પર અને ઇન્ડિયન સિનેમા કઈ રીતે ચેન્જ થયું છે તેના ઉપર પણ ફોકસ કરે છે આ ડોક્યુમેન્ટરી. સો ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ કાઇન્ડ ઓફ અ ડોક્યુમેન્ટરી, જેનું આજે સ્ક્રીનિંગ છે. કોગ્નિટો કરીને એક એજન્સી છે, દે આર ડુઇંગ ઇટ. અને આઈ થિંક વડોદરામાં આવું સ્ક્રીનિંગ બહુ ઓછું થતું હોય છે. સો આઈ ટુક ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્પીક ટુ જયદીપજી, અને તેમની સાથે ઘણી બધી વાતો થઈ રિગાર્ડિંગ ફિલ્મ મેકિંગ, અને કઈ રીતે જે સૌથી સક્સેસફુલ ફિલ્મ મેકર્સ હોય છે તે ટેલેન્ટેડ હોય કે ના હોય, પણ બિઝનેસમેન જરૂર હોય છે. ઇનફેક્ટ તેમનું એવું કહેવું છે કે ટેલેન્ટેડ ફિલ્મ મેકર્સ એ હંમેશા સક્સેસફુલ ફિલ્મ મેકર્સ હોય તેવું मानी न लेवो. અને તેમની ડોક્યુમેન્ટરીનું નામ છે बावरा मन. सुधीर मिश्रा पे आधारित है ये फिल्म, पर सुधीर मिश्रा के ही बारे में ये फिल्म नहीं है, ये इंडिया और उसके सिनेमा के बारे में भी है. सो जयदीप वर्मा जी ये फिल्म के डायरेक्टर है. ये एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. तो जयदीप जी, आपकी फिल्म के बारे में हमें थोड़ा कुछ और बताइए. बाहर से तो ऐसा लगता है कि एक बायोग्राफिकल फिल्म है, जो कि है. हाँ. ऐसा नहीं है कि बायोग्राफिकल फिल्म नहीं है, लेकिन उनके लाइफ को लेके हम कुछ और कहानियां एक्चुअली कह रहे हैं, कुछ एक्चुअली डीपर पॉइंट्स कही जा रही है. जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 1970s में सागर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो, जब वो उनके फॉर्मेटिव इयर्स सागर यूनिवर्सिटी उस टाइम पे शायद इंडिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से था. अभी बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरह से डिक्लाइन हो चुका है. सिमिलरली लेट 1970s और अर्ली 1980s में वो दिल्ली के थिएटर सीन में थे. उस टाइम पे जो वहाँ का जो थिएटर सीन था बहुत ही ज्यादा अलाइव था, वो भी बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन कर चुका है. लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मैंने उनके लाइफ को यूज करते हुए बाकी चीजों के बारे में एक डिबेट स्टार्ट किया विद अदर पीपल ऑल्सो. और मेरे लिसनर्स को अगर मैं समझाऊं एक लाइन में कि ये चीज सुधीर मिश्रा की लाइफ एक स्केल है, वो स्केल पे सुधीर मिश्रा जैसे ग्रो हुए हैं वैसे इंडियन सिनेमा की रियलिटी कैसे चेंज हुई है, ये चीज आपने दिखाई. That's a very nice way of putting it actually, yes. So that's what the documentary is all about. હવે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ કોન્સેપ્ટ છે, बड़ा इंटेलिजेंट सा कॉन्सेप्ट है, और हमेशा इंटेलिजेंस वर्सेस एंटरटेनमेंट के बीच में डिस्कशंस तो होते ही रहते हैं. तो इस डिस्कशन में कौन सी साइड पे हमारे डायरेक्टर साहब हैं? सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंटेलेक्चुअल फिल्म, मैं जयदीप जी से पूछना चाहूंगी कि जब वो फिल्म बनाते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द फिल्म, और डज ही ऑल्सो इंक्लूड एंटरटेनमेंट इनटू इट? सी मैं उसके बारे में सोचता नहीं. इन द सेंस मैंने ये फिल्म अपने लिए बनाई है, टू बी ऑनेस्ट. आई नेवर इवन लुक फॉर एनी फंडिंग. ये पहले 6 लाख में बनी थी. उसके बाद ये लक की बात है कि फिल्म्स डिवीजन ने फिल्म देखी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने फिल्म को अपनाया. लेकिन मैंने तो ये वो सब कुछ सोचा नहीं. देखिए, एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए एंटरटेनिंग होती है. मेरे लिए तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है. इसके पहले मैंने एक डॉक्यूमेंटरी बनाई थी ऑन द म्यूजिक बैंड इंडियन ओशन, तो वो भी लिविंग होम, तो वो भी बहुत ही एक एंटरटेनिंग फिल्म है. यू नो, जिन्होंने देखी है वो मतलब ये कहते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता 2 घंटे कैसे बीते. अभी एंटरटेनमेंट और क्या है, यही तो है एंटरटेनमेंट, अगर आपको अब्सॉर्ब कर रहा है. लेकिन उसमें वो एलिमेंट्स नहीं है जो लोग एसोसिएट करते हैं. एक नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, वो गोलमाल टाइप का एंटरटेनमेंट नहीं, वो तो है नहीं. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं ये चीज कहना चाहूंगा, विच इज व्हाई आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू कम टू बड़ौदा, बिकॉज
मेरे को लगता है ऐसी सिटीज में, स्पेशली अ सिटी लाइक बड़ौदा जिसका एक बहुत डीप कनेक्शन है विद आर्ट्स एंड कल्चर, मुझे लगता है ऐसी सिटीज में ऐसे फिल्म को कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है than in even a city like Bombay. I so agree with him. बड़ौदा कॉलर ऊंचा करो यार. This is the city of art and culture and I think कि हमको हमेशा आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देना ही चाहिए. अभी ऐसी जो फिल्में होती है जो थोड़ी हटके होती है, जो थोड़ी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई होती है, इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम्स. जयदीप जी, आपका क्या कहना है ऑन दिस टॉपिक ऑल टुगेदर? इंटरनेट से बहुत कुछ लेवल हो रहा है अभी. आप इफ यू कीप इन टच ऑन सोशल मीडिया, वो आपके फिर फ्रेंड्स लिंक करेंगे तो मतलब कोई ना कोई तो उसको देखेगा. ऐसे ही आई गेस ये स्प्रेड होगा. ये फिल्म डीवीडी में रिलीज होगी 6-7 महीने बाद. पर इसका मार्केटिंग हाउ डज इट गो? क्योंकि आई हैव नो आइडिया. वो फिल्म्स डिवीजन को मालूम है वो क्या करेंगे इससे. मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इसके बारे में जानना भी नहीं है क्योंकि मैंने लिविंग होम की मार्केटिंग में काफी मतलब दिमाग लगाया था और इट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस कि आई डिड नॉट वांट टू मेक अ फिल्म फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. Because see, that's what, as myself, as somebody who is interested into documentaries, I found it very difficult कि मैं लोगों तक इसको कैसे पहुंचाऊं. आई थिंक इंटरनेट में ही सबसे हमारे एक्चुअली बेस्ट चांसेस ऐसी फिल्म बनाने का. द नेट इज द बेस्ट मीडियम. सो ऑल दोज फिल्म मेकर्स जो अभी बड़ौदा में बैठे हैं, सुन रहे हैं, जिनको पैशन है कुछ आगे बढ़ने का इसमें, आई थिंक इंटरनेट इज व्हाट जयदीप जी वुड रिकमेंड. आई वुड सर्टेनली रिकमेंड इट. अभी इंटरनेट पे मार्केट तो हो जाए पर उसका फाइनेंशियल रिटर्न मिलना बड़ा ही मुश्किल है. इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ. प्लीज टेल मी. किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि कोई अमेरिका से आए थे डोनट्स, वो डोनट्स सेल करना चाहते थे इंडिया के ऑफिस में. तो एक मल्टीनेशनल ऑफिस में उन्होंने 2 बास्केट रखे जो बिल्कुल जो अमेरिका में जो प्रैक्टिस है. एक बास्केट में डोनट्स हैं और दूसरे बास्केट में पीपल आर एक्सपेक्टेड टू पुट द मनी. वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये लोगे तो इतना देना, ये लोगे तो इतना लेगा. उनका ये कहना था कि यूएस में 95 to 97% पीपल यूज्ड टू पे. तो यहाँ पे पता नहीं चला कितने लोग पे करते हैं क्योंकि डोनट्स भी गायब हो गए और बास्केट्स भी. ऐसी चीज मैं बॉम्बे और दिल्ली में तो मान ही सकता हूँ हो सकती है. मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग, जैसे मैंने आज सुना है कि कुछ 350 लोग आ रहे हैं फिल्म देखने. ये फिल्म 350 लोग बॉम्बे में ऐसी फिल्म देखने नहीं आएंगे. ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ. Okay. तो ये दैट इज द बिग डिफरेंस. So, शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जो बास्केट मल्टीनेशनल कंपनी से चली गई वो बड़ौदा के अगर किसी ढाबे में रखी होगी शायद नहीं जाएगी. शायद नहीं, यकीन के साथ कह सकते हैं आप नहीं जाएगी. See, that is the difference. और हम कई बार कहते रहते हैं that बड़ौदा is a small city, क्या होगा, पर कहीं ना कहीं I think that it is not about the city being big or small. ये लोगों के बारे में है और ये लोगों की मेंटालिटी के बारे में है ना. तो जयदीप जी से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि सुधीर मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हीरोइंस जो होती है, एक्ट्रेसेस जिनको वो कास्ट करते हैं अपनी फिल्म में, उनके प्यार में पड़ जाते हैं. He falls in love with them. Is it true? These are sort of catchy things to say. I don't know. ऐसा कुछ है कि नहीं, लेकिन उनके फीमेल कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि वो उनको इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं. मतलब एक पर्सन की तरह देखते हैं, नॉट एज अ स्टीरियोटाइप, विच इज बाय एंड लार्ज द वे पीपल सी वुमेन इन सिनेमा व्हेन इट कम्स टू बॉम्बे सिनेमा. बॉम्बे सिनेमा. Okay, so you call it the Bombay cinema. मैं ये कह रहा हूँ कि anything that comes out of Bombay, if you classify that as Bombay cinema. Bombay cinema. और लोग कहते हैं कि बॉम्बे सिनेमा के लिए आजकल बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. व्हाट डज जयदीप जी थिंक? सी, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा टाइम है इंडियन सिनेमा के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए एंड ऑल दैट. मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये बहुत अच्छा टाइम है. ऑल राइट. और सुधीर मिश्रा अगर इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या ये अच्छा समय है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो क्या देंगे जयदीप जी? फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ही मेक्स एट वन पॉइंट, जो कि शायद कैमरा बहुत देर ऑन रहने के बाद ऐसी चीज मुंह से निकलती है. जो उन्होंने कहा कि दीज आर गुड टाइम्स फॉर पीपल लाइक मी इफ वी चूज टू नॉट बी एज गुड एज वी आर. बड़ी गहरी बात कह दी. ये मतलब पूरे फिल्म का एक्चुअली ये सिनॉप्सिस है. बड़ी हटके फिल्म लगती है और ऐसी फिल्में जो थोड़ी हटके होती है देखनी चाहिए. सीखने को तो मिलता है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है. विथ मी मोहिनी, किटली कल्चर सामने रहा था ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. थैंक यू सो मच मिस्टर जयदीप वर्मा फॉर टॉकिंग टू अस एंड बीइंग विथ अस ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. इट्स हॉट.